Okay. Good afternoon, Kulnur. Can you hear me? Good afternoon. Survi, can you hear me? Good afternoon. Okay. उनको भी बुला लो. Who else, please hurry up. Yes. Okay. Yes, Kulnur, can you hear me? Okay. Survi, can you hear me? Yes, sir. Okay. Please hurry up. What else? Okay. So let's continue. Last time we were discussing about Article 15. और Article 15 को मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि Article 15 में at present we have how many classes? 6 classes. ठीक है. Article 15(1) में हमने ये डिस्कस किया था कि no citizen shall be discriminated by the state only on the ground of 5 grounds which are mentioned there: caste, color, sex. ठीक है. Recording in Right? progress. Place of birth, etc. Right? But Article 52 further says that no liability or disability of any kind shall be imposed by anybody, be it a private citizen also, on any person with regard to, wells, with regard to bathing guards, public places where public use, right, usually make a, where the public has access, right, to that particular place. Even a private persons cannot impose any disability or liability on any citizen of India for that matter. Article 15(3) we were discussing about that it is very important provision. ये आपको कभी पूछा भी आ सकता है, right? The state can make special provisions for the welfare of women and children, right? Special provision बना सकते. Now तो यहाँ क्वेश्चन बड़ा important कभी पूछा जा सकता है कि what does it entail? इसमें actually क्या मतलब है इसका special provision? तो can the state provide reservation to women also? ठीक है, तो आप बोल रहे कि yes, it is not only making favorable legislation in favor of women and children, but even reservation can also be provided by the state, right, under Article 15(3). Okay, right, reservation can also be provided. Recently the Parliament enacted 106 constitutional amendment by invoking the use of 15(3). Wherever any effort is being taken by the state, okay, for the welfare of the women and children, it is permissible, and it includes everything. तो ये आपने याद रखना, it includes everything, right? Not merely favorable laws, right, to favor the women and children, but also reservations in jobs or admissions, whatever the state. But we have already underlined in the earlier class also that this is not someone's fundamental right. You cannot compel a state. Even you cannot go to a court of law to compel the state. No writ of mandamus can be issued to compel the state to provide. It is purely a discretion or prerogative of the state to provide reservation or to provide. That's why it is purely an enabling provision. Just like reservation, similarly 16(3) is also an enabling provision. Okay, but it's not some enabling provision. Okay, it enables the state to provide, right, for the advancement or welfare of women and children. Okay, so सबसे important which has generated immense case law, and this is still it's a very controversial provision of our constitution, right? इसका ही corresponding article आपको 16(4) में मिलेगा, right? अगर आपने 15(4) समझ लिया तो 16(4) अपने आप आपको समझ आएगा, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात करता है. ठीक है, Which one? हाँ, 15(1) का एक्सेप्ट. 15(1) says that no citizen shall be, right? अब ये एक्सेप्शंस कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे? यहाँ always remember that, ठीक है. अब when Article 15(1) says that no citizen shall be discriminated only on the ground of caste, color and, that's why जब हम 16(4) में रिजर्वेशन की बात करते हैं, किसकी? सोशली एंड एजुकेशनली बैक, SEBCs कहते हैं. ठीक है, सिंपल आप ऐसे SEBCs. जब हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, राइट, रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये बहुत बड़ी डिबेट हमारे देश में चली कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा.
कैन बी यूज ओनली कास्ट? तो आंसर इज नो. ठीक है, राइट. मैं आप मेरी बात समझे? कैन बी यूज ओनली कास्ट, क्योंकि ओनली कास्ट इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 15(1). कास्ट along with other factors only cannot be used as a card along with other factors. और इसलिए कोर्ट ने आपको जो लोकस क्लासिकस केस मैंने बताया था, राइट, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, बालाजी केस, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कह दिया, 1963 का केस है, पहली बार रिजर्वेशन का इशू इस केस में आया था. ठीक है, उस वक्त कर्नाटका भी नहीं था, मैसूर थे. ठीक है, 1963 का केस, wherein the government of Mysore, ठीक है, provided reservation by using only caste as a criteria. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कास्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल क्राइटेरिया टू डेजिग्नेट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. ठीक है, नंबर वन, व्हाई सिमिलरली. ठीक है, उसका मेन रीजन है कि एक तो हमारा आर्टिकल 15(1) कास्ट का ओनली कास्ट डिनाई करता है कि आप किसी सिटीजन को ओनली कास्ट के बेस पे डिनाई फेवर नहीं कर सकते. ठीक है, या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. सेकेंडली, इट विल परपेचुएट कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री. अगर हम कास्ट को अलाउ करते हैं तो ये किसकी परपेचुएशन होगी? कास्ट सिस्टम की. whereas the main goal of constitution is to abolish caste system in this country so as to create a casteless society. दूसरा ये रीजन दिया. तीसरा उन्होंने ये दिया कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हुआ है. ऑल्दो कास्ट इज द मेन फैक्टर, इट कैन बी यूज्ड एज अ मेन डिटर्मिनेंट, बट सोल फैक्टर कैन नॉट बी यूज्ड. इसका सोशियोलॉजिकल रीजन भी है. सोशियोलॉजिकल रीजन भी ये है क्योंकि देर आर मैनी कम्युनिटीज, देर आर मैनी, आप ये कह सकते कम्युनिटी कहते हो, या मैनी रिलीजन्स इन इंडिया विच डू नॉट रिकग्नाइज कास्ट. ठीक है, लाइक मुस्लिम, क्लियर, लाइक बुद्धिस्ट, उनमें कोई कास्ट नहीं है. ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उस कम्युनिटी में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग नहीं है. ठीक है, थर्डली, फोर्थली उन्होंने कहा कि सिंस आर्टिकल 14(4) में क्लियरली क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ? क्लास शब्द लिखा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, क्लास लिखा है, कास्ट नहीं लिखा. ठीक है, देयरफॉर कास्ट कैन बी यूज्ड टू क्लास, but only caste cannot be taken as the determinant. Other factors means social and economic backwardness of that particular community should also be used to designate one as socially and educationally backward. Did you understand? Yeah, other क्या है? क्योंकि constitution क्या लिखा है? Social backwardness, social and economic, meanings poverty. ऑल्दो कास्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में, ठीक है, बैकवर्डनेस का, बट कास्ट के साथ हमें क्या और का फैक्टर क्या यूज करने पड़ेंगे? ठीक है, कास्ट इज द मेन फैक्टर फॉर सोशल बैकवर्डनेस, नो डाउट. ठीक है, कास्ट है, बट कास्ट के साथ हम पॉवर्टी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, आज की डेट में आपको पता जिसको हम कहते हैं SC/BC, आज की डेट में क्या इनकम का क्राइटेरिया भी यूज होता है. ठीक है, इसको कहते हैं मीन्स एंड ऑक्यूपेशन टेस्ट. मीन्स एंड ऑक्यूपेशन टेस्ट, ऑक्यूपेशन कम मीन्स टेस्ट. ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. कास्ट तो है ही नहीं ना. देखो, ये तो कहा गया कि कास्ट इज क्लास इन इंडिया. ठीक है, कास्ट एक अलग क्लास है. ठीक है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हर कास्ट, अगर हम सिर्फ कास्ट को, तो इससे देख कास्ट सिस्टम परपेचुएट होगा हमारे देश में. सेकेंडली, कुछ ऐसी कम्युनिटी जहाँ कास्ट रिकग्नाइज ही नहीं है, बट उसका मतलब नहीं है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है. तो डिटर्मिनेंट अब क्या है? इसको कहते हैं ऑक्यूपेशन कम मीन्स टेस्ट. ऑक्यूपेशन किस जॉब में वो काम कर रहे हैं, और मीन्स. दैट्स वाई हमारे देश में जितने भी SC/BC, जिनको हम OBCs भी कहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस, ऑल्दो दोनों का टर्म अलग है. ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस अलग हैं, SC/BC अलग है, बट हमें दोनों फैक्टर देखने पड़ेंगे, सोशल और एजुकेशनल. एजुकेशनल बैकवर्डनेस मोस्टली किसके बेसिस पे? पॉवर्टी के बेसिस. तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया. ठीक है, दैट्स व्हाई चित्रलेखा केस, बालाजी के बाद 1964 में केस आया, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. उसमें मैसूर गवर्नमेंट ने कास्ट को बिल्कुल यूज नहीं किया, कास्ट को निकाल दिया. इनकम का क्राइटेरिया 1200, जिनकी पारेलम 12,000 पारेलम इनकम है. ठीक है, राइट, और जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में काम करते हैं,
एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, उनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बना के उनको रिजर्वेशन दी। इट वाज चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट कि कास्ट आपने यूज नहीं की, तो कोर्ट ने कहा कास्ट जरूरी नहीं है फैक्टर, कास्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट टू डेजिग्नेट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यू मस्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस यूज कास्ट, ठीक है, राइट। तो ये अब 15(4) में जो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, और इसका रीजन मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट किन सर्कमस्टांसेस में लाई गई। मद्रास गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे उन्होंने रिजर्वेशन दी, ब्राह्मीण्स को कुछ सीटें दे दी, ठीक है, राइट, कुछ आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, उसको चंपाकम दुराइरोजन केस कहते हैं, उसके चलते अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और इवेंचुअली फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ये आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, जिसमें ये लिख दिया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। अब सोशली एंड एजुकेशनली मैंने आपको बता दिया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड किसको बोलते हैं, इसका मतलब दोनों से नाम पड़ रहा है हमें। कास्ट कैन बी द फैक्टर, आप पूछा जाएगा तो व्हाट इज द फैक्टर टुडे, कास्ट कैन बी द फैक्टर, बट सोल फैक्टर कैन नॉट बी द कास्ट टू डेजिग्नेट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एज सोशली एंड एजुकेशन, ठीक है, ठीक है। सोशल बैकवर्ड के साथ कास्ट तो है ही है, बट उसके साथ इनकम, दैट इज पॉवर्टी, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन also be the main determining factor to designate a particular community as socially and educationally backward, ठीक है। 15(4) so लिखा है, शब्द लिखा है, the state, right, notwithstanding the provision, ऊपर लिखा हुआ है the state is not prevented from making special provisions for the advancement। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, एक तो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड मैंने आपको बता दिया, बालाजी केस, एंड इवेंचुअली इसी को आगे कंटिन्यू किया गया, एंड इट कल्मिनेटेड विद द मोस्ट important case in India, that is called as मंडल कमीशन केस, 1993 का केस जो है, जिसको हम इंदिरा सोनी केस भी कहते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या अल्टीमेटली इसके ऊपर कंक्लूजन है, राइट। तो मंडल कमीशन केस के बाद जितनी भी हमारी आगे डिबेट चली है, वो सिर्फ इस बात पे चली है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो सकती है तो नहीं हो सकती, तो इवेंचुअली आज की डेट में जो बॉटम लाइन है कि 50% इज़ द सीलिंग, ठीक है, लिमिट, और उसको क्या जस्टिफिकेशन है, बिकॉज अगर हम 50% से रिजर्वेशन एक्सीड करेंगे, राइट, चाहे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें चाहे जॉब्स में बात करें, इट विल डिफीट राइट टू इक्वालिटी विच इज गारंटीड टू एवरी सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल डिनाई, ठीक है, बिकॉज द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट वुड नॉट बी एबल टू get access to jobs or educational institutions because they have also right of equal opportunity which is available for everyone, इसलिए 50% से कोटा नहीं एक्सीड हो सकता, ठीक है। तो मंडल कमीशन के इस केस में फिर उसके बाद मंडल कमीशन की जो कुछ बातें थी उसको पार्लियामेंट ने ओवरलूल किया फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जैसे मंडल कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट में मिलेगी, एडमिशन में तो है ही है, बट अगर हम जॉब की बात करें आर्टिकल 16 में तो अपॉइंटमेंट में ही मिलेगी, अपॉइंटमेंट इनिशियल लेवल पर, प्रमोशन में नहीं होगी, इसको अंडू कर दिया, ठीक है, इसको हमारी पार्लियामेंट ने अंडू कर दिया, और पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की 77th अमेंडमेंट, ठीक है, जिसके द्वारा आर्टिकल 16(4)(a) डाला गया, ये हम आज बात करेंगे 16(4), ठीक है, जो कि आई थिंक इट वाज समवेयर इन 1995, जो कि प्रमोशन में रिजर्वेशन गारंटी करता है, संविधान का प्रोविजन, ठीक है, बट वो अगेन मैंने बताया इनेबलिंग प्रोविजन होते हैं ये सारे, किसी के पास कोई राइट नहीं है कोर्ट में जाने के कि हमें प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिली, ठीक है, भले ये राइट नहीं है, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, दिस इज कैसे, हाँ डिस्क्रिमिनेशन, हम ऐसे देखो ऑन द फेस ऑफ इट हम इसको कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, बट अल्टीमेटली ये वो है, आर्टिकल 14 चल रहा है ना इधर भी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, हाँ हाँ उसी के बेसिस, हाँ हाँ, हम्म हम्म
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो तभी तो, अरे ये स्टेट, ये पॉलिसी डिसीजन है, ये स्टेट की प्रेरोगेटिव है कि हमने कितनी प्रमोशंस, सपोज 10 सीट्स हैं आईएएस की, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे, उनको सेक्रेटरी लेवल पे प्रमोट करना है, ठीक है, तो वो स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिसीजन लेगी कि इस कम्युनिटी से, इसको कहते हैं क्वांटिफाइबल डेटा, एक टेस्ट पास करना पड़ता है, राइट, ये तो अल्टीमेटली, अरे मैं तो आपको इनेबलिंग, आगे तो फिर कोर्ट में इसको, आगे कोर्ट में ये चैलेंज होगा ना ये, ठीक है, आगे नागराज केस आता है ना, नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस लगा दी कि जो आप प्रमोशन दोगे उसमें तो पहले आपने, ऐसे नहीं कि आप मेरिट को किल ही कर दो टोटल, आपने मेरिट खत्म कर दिया फिर तो अब इट इज हाई हैंडेडनेस ऑन योर पार्ट, तो आपने 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। एक तो आपने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल डेटा, ठीक है, कि कितने इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इस टॉप सर्विस में प्रेजेंट है, डेटा क्या है, क्वांटिफाइबल, क्वांटिटी, ठीक है, फैक्ट्स के बेसिस पे डेटा लाओगे आप, ठीक है। दूसरा आप ये प्रपोज करोगे कि रिजर्वेशन चाहे वो प्रमोशन में है चाहे वो जॉब्स में है, आर्टिकल 335 मैंने एक दिन बताया था आपको, एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन विच कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्शियसली लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए। एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट द कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। ये नागराज केस में चीज़ें उन्होंने वो कहते हैं कि क्वांटिफाइड डेटा, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, और दूसरा क्वांटिफाइड डेटा, उसके बाद और उनकी एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपके आर्टिकल 16(4) ये भी कहता है कि अगर स्टेट को लगता है कि इस सर्विसेज में लोग इस कम्युनिटी से कम है तो वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये भी तो आपने फुलफिल करनी है कंडीशन, एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उस कम्युनिटी से कि नहीं, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करनी, राइट। इसी नागराज को अल्टीमेटली जरनैल सिंह केस में चैलेंज किया गया, इसको रिव्यू करने की पिटीशन थी, जरनैल सिंह, इट हैपेंड समवेयर इन 2018-19, जरनैल सिंह, तो रिजर्वेशन के बड़े लैंडमार्क केसेस आप सुन रहे हो ना, बालाजी से स्टोरी शुरू होती है, आपने अपने आंसर में यही केसेस चिपका देने, बालाजी लोकस क्लासिकस, क्या बोलते हैं, लोकस क्लासिकस, जुडिशरी की लैंग्वेज, ट्रेंड सेटर, लोकस क्लासिकस में ट्रेंड सेटर है, वहां से ट्रेंड शुरू होता है रिजर्वेशन के ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट बालाजी केस इज नोटेबल, ठीक है, फॉर सेवरल रीजंस, बट सबसे बड़ा रीजन ये है कि बालाजी ने एक ट्रेंड शुरू किया, ये ट्रेंड सेटर 2 केसेस में हुआ कि कास्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल क्राइटेरिया, नंबर 1 कास्ट, ठीक है, अदरवाइज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम, राइट, फेल हो जाएगी, इवेंचुअली आप रिजर्वेशन किस लिए प्रोवाइड कर रहे हो, टू डू अवे विद द हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे आप वंस बैकवर्ड डज नॉट मीन फॉरएवर बैकवर्ड, आपने उसको ऊपर लाना, ठीक है, तो अगर आपने ऐसे किया तो फिर तो कास्ट, इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो ड्रीम है वो क्या है, एक कास्टलेस सोसाइटी बनाना, तो आपने उस ड्रीम को पूरा खत्म कर दिया, तो एक तो ये उसके लिए फेमस है बालाजी केस, तभी लोकल क्लासेस कहते हैं ना कास्ट का, तभी बताया ना मैंने आपको, ठीक है। दूसरा जो इसका और बड़ी सिग्निफिकेंस है कि इसने पहली बार रिजर्वेशन के ऊपर लिमिट फिक्स करने की बात की, इसी केस ने सबसे पहली बार बोला था कि रिजर्वेशन, बिकॉज राइट टू इक्वालिटी सबको राइट है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड करोगे तो वो इरेशनल हो, वो वायलेटिव हो, वहाँ से क्लासिकस है, ये कल मैंने आपको बताया, इसी को आगे रिपीट करेंगे ना, ठीक है, राइट, इसी को आगे रिपीट करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट इनको थोड़ी, चाहे जितने मर्जी केसेस हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट इन दो कंडीशंस को तो कभी नहीं छोड़ती ना, ठीक है, कि रिजर्वेशन 50, इसलिए मंडल कमीशन केस में उन्होंने क्या कहा, सबसे बड़ा वही है ना कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट अंडर, बालाजी की बात ही रिपीट की है ना मंडल कमीशन में, अरे बालाजी तो ले डाउन करेगा ना, बट अनफॉर्चुनेटली बालाजी में वो माइनॉरिटी था, अब ये मेजॉरिटी बन गया। जीवन रेड्डी ने जजमेंट दी थी मंडल कमीशन केस की, राइटिंग 9 जज की ये जजमेंट थी, बेंच थी, और इसमें जो लीडिंग जजमेंट थी दैट वाज जस्टिस जीवन रेड्डी, ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, उसने 50% की वही रिट्रीट, बट इसने एक जो मैंने वही बता रहा, मंडल कमीशन ने कह दिया कि रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट में होगी, ठीक है, बट आगे जाके जब कॉन्स्टिट्यूशन की और उन्होंने इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, इंटरप्रिटेशन की, तो सब्सिक्वेंट केसेस में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 यूजेस अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 शब्द यूज करता है, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क है,
एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कंडीशंस ऑफ सर्विस, प्रमोशंस, ग्रेचुटी, पेंशन सब कुछ आता है एम्प्लॉयमेंट में, है ना आप, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इम्प्लाइड है आर्टिकल 16 में प्रमोशन का आइडिया, और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी दे सकते हो। कोर्ट ने मना किया, देखो कोर्ट ने मंडल कमीशन केस में मना कर दिया, उसको ओवर रूल किया 77th अमेंडमेंट में, उन्होंने 64A डाल दिया ना, जिसमें उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डाल दिया, ठीक है। अनदर अमेंडमेंट which added 16(4)(b 16(4)(b that was added by 81st amendment, उसमें मंडल कमीशन केस का ही एक और पॉइंट ओवर रूल किया पार्लियामेंट ने, जो ये कहता था कि रिजर्वेशन में हर साल एवरी ईयर 50% की सीलिंग देखी जाएगी। सपोज जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनकी 50% सीटें हर साल ईयरली बेसिस पे देखी जाएंगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इफ third post could not be filled in the previous year? Suppose there were 10 seats for SCs and only 5 were found competent, okay, to be selected into IAS and 5 remained vacant. Clear? Now, if we carry these 5, ठीक है, अगले साल 50 है तो 5 ये आगे हम कैरी करते तो 55 हो जाएगी ना रिजर्वेशन। तो इसको अंडू कर दिया, उन्होंने कहा कि ये कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई होगा कि जितनी पोस्ट बच जाएंगी वो आगे चले जाएंगी और वो अगले साल के 50% में काउंट नहीं होगी, तो कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। जैसे इन मंडल कमीशन केस सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन दैट इन एनी केस reservation shall be evaluated on yearly basis. 50% reservation will be. Suppose in a particular year the reserved vacancies were 10, ठीक है, only 5 were found competent, 5 ही हमें SC कम्युनिटी से जो रिटर्न और ये पास करके सेलेक्ट होते हैं, 5 खाली रह जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? नाउ अब ये जो 5 जो खाली हैं, ठीक है, इनका क्या होगा? क्लियर? अगर हम अगले साल इनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 55% हो जाएगी ना रिजर्वेशन, ठीक है, हो जाएगी ना। तो फिर उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर जब 50% हम काउंट करेंगे उसमें ये कैरी फॉरवर्ड जो वैकेंसीज होंगे काउंट नहीं, इसको कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। आफ्टर 3-4 ईयर्स हम उन सभी कैरी फॉरवर्ड जो वैकेंसीज हैं उनको एक इकट्ठा निकाल के अलग कैटेगरी या पोस्ट निकाल दें, ठीक है। आपने देखा होगा ओम बिरला की बेटी लास्ट टू लास्ट ईयर शी गॉट इनटू सिविल सर्विसेज फ्रॉम दिस कोटा ओनली, कैरी फॉरवर्ड के बेसिस पे, जो स्पीकर है लोकसभा। क्लियर? इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। गॉट इट? ठीक है। तो हमारे पास आर्टिकल्स, इसलिए मैं आर्टिकल 15 और 16, ठीक है, दोनों आपको इसको वो करें। बट अनदर इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ आर्टिकल 16 जो है और आर्टिकल 15(4) और 16(4) में एक और छोटा सा डिफरेंस है कि 15(4) में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिखा हुआ है और आर्टिकल 16 में लिखा है बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये बैकवर्ड क्लासेस में बीच में फर्क क्या है, ठीक है, राइट। तो बैकवर्ड क्लासेस ने कहा कि है तो ये यूजडम जनरस है, एक जैसे ही है, ठीक है, बट बैकवर्ड क्लासेस में कास्ट के बिना भी वो क्लासेस आ सकती हैं जो बैकवर्ड है। बैकवर्ड क्लासेस में हिंदूज में भी आ सकती, बैकवर्ड क्लासेस में मुस्लिम में भी आ सकती, और बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है, बिना कास्ट के। सोशली एंड एजुकेशन में कास्ट कैन बी द मेन फैक्टर, ठीक है, बट बैकवर्ड क्लासेस में कास्ट मेन फैक्टर नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस तो किसी में भी आ सकती है, इसलिए उनको ही हम ओबीसी कहते हैं जब हम जॉब की बात करते हैं, ठीक है। ये फर्क है वहाँ, क्योंकि आर्टिकल 16 में बैकवर्ड क्लास शब्द यूज किया है और आर्टिकल 16 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिखा है। तो ये क्रक्स है इनका ना आर्टिकल 15 और 16 का, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। एक जॉब की बात कर रहा है और एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एनी वेसेट ऑफ लाइफ, किसी में भी बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, चाहे वो सिविल इक्वालिटी है, वो आर्टिकल 15, इसलिए हमने मतलब आर्टिकल 15 इन वन सेंस इज सिविल राइट, ठीक है, व्हिच सीक्स टू बैन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन merely by the fact that they are from a particular caste, from a particular descent, ठीक है,
या पर्टिकुलर रिलीजन, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बैन करता है आर्टिकल 15। तो सिविल राइट कहते हैं, सिविल राइट की मूवमेंट इसी को कहते हैं ना। यहाँ एक पर्टिकुलर डिसेंट या एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग होने की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ठीक है, एंड यू आर कंसिडर्ड एज ए सेकंड क्लास सिटीजन इन दैट country. Like LTTs were considered as second class citizen in Sri Lanka, and that's why they were fighting a war. And eventually they fought it, and it remained a very protracted battle, ठीक है, अगेंस्ट द डिस्पेंसेशन, एंड इवेंचुअली आपको पता होगा उनको एलिमिनेट कर दिया गया। वो सिविल राइट की मूवमेंट। तो आर्टिकल 15 इसलिए फेमस है। तो आर्टिकल 15 की क्लासेस आपने, बट सबसे बड़ा फोकस जो कंट्रोवर्शियल जिस पे हमने बोला वो आर्टिकल 15(4) है और कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल 16(4), ठीक है। यहाँ सारी स्टोरी रिजर्वेशन के ऊपर सेंटर्ड होती है। आर्टिकल 15(1) में हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पढ़ लिया, ठीक है। आर्टिकल 15(2) में हमने किसी किस्म की लाइबिलिटी डिसेबिलिटी वो प्राइवेट सिटीजन के ऊपर भी लागू है। आर्टिकल 15(3) में हमने वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कुछ भी इंक्लूड है वुमेन के वेलफेयर के लिए, एनीथिंग, ठीक है। एनी स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन, बी इट रिजर्वेशन। पंजाब में एक केस हुआ, यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, ठीक है, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी वर्सेस डीएवी कॉलेज, पता नहीं कुछ ऐसा केस था। यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सिर्फ वुमेन को ही एलिजिबल पाया गया, ठीक है, मैन ने चैलेंज किया, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज में सिर्फ वुमेन को ही प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया गया, सिर्फ वुमेन अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो मैन आर इक्वली क्वालिफाइड, ठीक है, राइट, दे चैलेंज इट, मैंने चैलेंज इट, but court ultimately held that under Article 15(3) it is permissible for the state, right, to provide special principal post to the women exclusively, even to exclude the men, even though they are qualified. Is that clear? ठीक है, ये प्रोविजन बड़ी ठीक है, इसमें मेन जो रोल हमारी संविधान सभा में, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, वॉज अ प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू नो देयर वर 9 women members in the constituent assembly। जब संविधान लिखा गया ना, 9 prominent members थी, राइट। प्रोमिनेंट आपको पता है फाउंडिंग मदर्स कहते हैं, सरोजिनी नायडू टू विजय लक्ष्मी पंडित टू हंसा मेहता, वन ऑफ देम वाज राजकुमारी अमृत कौर। ही persuaded the constituent assembly to provide such provision. In fact, she was pressing the constituent assembly to provide reservation explicitly for the women, keeping in view their weaker position in the Indian society. But then her plea was not accepted, and eventually Constituent Assembly decided that let we place an enabling provision, enabling, mandatory नहीं, enabling, ठीक है, whenever state feels that women should be brought forward, ठीक है, there should be advancement of women and children, both are weaker section, vulnerable, it can do that for their welfare, ठीक है, be it in the legislative purpose, जैसे मैंने आपको maternity benefit, तो आप उसके बेसिस पे वुमेन को मैटरनिटी लीव मिलती है, सैलरी मिलती है उसके भी, बट मैन डू नॉट, राइट, गेट इंटाइटलमेंट टू दैट मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव फॉर दैट मैटर, एग्जैक्टली। तो ये एनेबलिंग 15(4) पे जिसमें हम सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, और उसकी मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी थी कि चंपाकम दुराई रंजन केस, ठीक है, और एक जगजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस भी हुआ। यहाँ क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ दलित को एक हाउसिंग सोसाइटी बना के दे दी, दलित को, सिर्फ दलित को, ठीक है, क्लियर। इट वाज अगेन चैलेंज्ड एंड कोर्ट हेल्ड दैट पॉलिसी ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, उसको जगजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, राइट। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 60s की बात, 63 64 की बात, अरे सॉरी 50s की बात कर रहा हूँ, अभी तो अमेंडमेंट आएगी ना। जैसे चंपाकम दुराराजन आया उसी वक्त एक केस आया 1952 में, जगजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ सिर्फ दलित के लिए महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी के अंडर हाउसिंग सोसाइटी बना के दी गई, इट वॉज चैलेंज्ड, ठीक है, बिकॉज यू हैव यूज्ड ओनली कास्ट एज अ क्राइटेरिया, ठीक है, ओनली कास्ट, ठीक है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 15 इटसेल्फ। आर्टिकल 15(1) क्लियरली कह रहे हैं, राइट, in view of these judicial pronouncement an exception had to be carved out, and
नेहरू जी ब्रॉट इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बैकग्राउंड थी जिसके अंदर पहली बार, तो आपको सरप्राइज होगा कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या उनके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या उनके बारे में कोई रिजर्वेशन का कोई जिक्र नहीं था हमारे संविधान, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू, अच्छा एक और याद रखना कि जब हम ये बात करें ना, यहाँ लिखा हुआ है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड, इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, आर्टिकल 15(4) बड़ा कंफ्यूज करता है। आर्टिकल 15(4) पढ़ोगे आप तो आपको पता लगेगा कि स्टेट इज परमिटेड टू टेक स्टेप्स फॉर द एडवांसमेंट, आगे शब्द क्या लिखा, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। Now, advancement word has been interpreted widely, which means it is not only reservation in education admissions for SCBCs in any matter, be it housing society जो होता है, be it scholarships, right? Okay, be it free subsidies, be it free education, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि एडवांसमेंट के लिए सारे मेजर्स यूज होते हैं। एक और चीज़ आपने जाना, व्हाट डज इट मीन, बिकॉज द वर्ड यूज, आप पढ़िए 15(4) पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। केयरफुली अगर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगेगी। यस, कुल्लूरदीप, क्लियर, Yes, sir. राइट, डिड यू अंडरस्टैंड सुरभि? Yes, sir. ऑलराइट, कोई क्वेश्चन आपका मुझे पूछ लीजिए प्लीज। क्या लिखा है, लिखा है ना, क्या लिखा है, क्लास 2 में वो लिख दिया ना कि डिसेबिलिटी लाइबिलिटी, हाँ। एयर, यू हैव टू अंडरलाइन एडवांसमेंट, यही तो लॉ का जब हम आंसर लिख रहे हैं तो एक एक शब्द की आपने इंटरप्रिटेशन करी, फॉर द एडवांसमेंट, मीनिंग दैट it is not only confined to reservation in educational institution, it is extended to everywhere, ठीक है। बीट स्पेशल हाउसिंग सोसाइटी, अब ये देखो 25 सेक्टर सारा दलित के लिए, पूरी पूरी कॉलोनी उनकी है, ठीक है, ये 25 सेक्टर की कॉलोनी है, राइट। चाहे उनके लिए फ्री हाउसिंग है, ठीक है, चाहे उनके लिए फ्री सब्सिडीज है, ठीक है, राइट, क्लियर, चाहे उनके लिए फ्री एजुकेशन है, स्कॉलरशिप है, एवरीथिंग इज परमिशन, ठीक है। और इसी बेसिस पे आप यूपीएससी के फॉर्म में देखो ना, उनको फीस नहीं देनी पड़ती। व्हेन दे अप्लाई फॉर यूपीएससी दे आर सपोज्ड टू पे एनी फी, राइट, यू वुड डेफिनेटली चैलेंज इट, ठीक है, you could have challenged it, but it is very much permissible under the constitution because advancement can subsume under it any measures, कुछ भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है जी। डिड यू अंडरस्टैंड सुरभि? Yes, sir. ठीक है जी। तो आर्टिकल 15(4), 15(5) मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है? और 15(5) मैंने आपको पहले बताया था किसके बारे में डील करता है, पहले बताया था मैंने 15(5), yes, 15(5) provide for reservation even in private educational institute, private engineering colleges, private medical colleges for SC and ST, ठीक है। हम जनरली आपको पूछा कि SC and BC, तो आपका इसका सिंपल टेस्ट बालाजी केस में क्या लर्न ऑन किया कि SC and BCs, पहले तो हम इसमें कास्ट सिर्फ यूज नहीं कर सकते, सेकेंडली ये बिल्कुल SC and ST की तरह हो, उनको हम SC BC करें, सोशली एंड एजुकेशन, ठीक है। SC and ST की तरह क्योंकि कास्ट शेड्यूल की वो मेन फैक्टर है उनकी बैकवर्डनेस का, इसलिए कास्ट कैन बी द मेन फैक्टर टू डिटरमिन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, बट कास्ट कैन नॉट बी द सोल, ठीक है। इट इज मीन्स कम इनकम क्राइटेरिया, एक्चुअल बेस्ट बेटर टेस्ट इज चित्रलेखा केस में यही हुआ ना, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में, ठीक है। इट इज इनकम प्लस ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो क्राइटेरिया। तो 15(5) में अब ये 15(5) आर्टिकल ये भी व्हाट यू कॉल एज 93rd अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट ने इसलिए डाला क्योंकि इन 2 लैंडमार्क केसेस, राइट, cited by the Supreme Court,
राइट, दैट इज कॉल्ड एज टीएम पाई केस, ठीक है, एंड पीए नामदार केस। उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है विच आर नॉट फंडेड बाय द स्टेट, उसमें एससी एंड एसटी की रिजर्वेशन नहीं हो सकती। उसको अंडू करने के लिए ये डाला, ठीक है, ये डाला, ठीक है। उसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर हम पे ऊपर रिजर्वेशन ये इम्पोज करते हैं या, बट इसमें एक चीज आपने याद करनी है, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता। माइनॉरिटी, व्हाई? As Article 29 and 30 of the Constitution guarantee a fundamental right to minorities to establish and administer their educational, उनको राइट है। इसलिए अगर उधर आप रिजर्वेशन इम्पोज करोगे, सपोज सेंट जोन्स सेक्टर 26, उसके ऊपर अगर आप रिजर्वेशन इम्पोज करोगे एससी एंड एसटी की, इट विल डिफीट देयर फंडामेंटल राइट टू एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है चलाना, ठीक है, देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस पे उस पे लागू नहीं होगी, तो उनको छोड़ के बाकी हर एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये रिजर्वेशन लागू होगी। किसके लिए? फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास विच आर एग्जैक्टली कौन हो गया? एससी एंड एसटी, ठीक है, राइट। बट सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास नॉट नेसेसरली एससी एंड एसटी, दे कैन बी अदर आल्सो, ठीक है, राइट। उसमें कास्ट एक फैक्टर हो सकता है, बट अदर फैक्टर कैन बी द ऑक्यूपेशन, किस टाइप के ऑक्यूपेशन में हो, ये भी फैक्टर देखा जाता है। एंड दैट्स व्हाई टुडे इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑल दिस इश्यूज फ्रॉम द पेल ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, आज की डेट में क्या कहती है सरकारें, ये सारे मैटर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को दे देती है। अगर किसी कम्युनिटी को आपने एससी बीसी या ओबीसी की कैटेगरी में डाला, तो आप किसको दे दोगे? एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आई थिंक इट ऑपरेट्स अंडर आर्टिकल 338A, 338 and 338 capital A, that is called as National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes, वो देखती है उसमें, ठीक है। तो कोर्ट जनरली उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं करती या उसको रिव्यू नहीं करती, वो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कमीशन है, यू नो, दैट इज हेडेड बाय द पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो दे वुड हैव इन्वेस्टिगेटेड ऑल दीज फैक्टर्स। पर वो जब इन्वेस्टिगेट करती है, सपोज एक्स कम्युनिटी को एससी में डालना है, ठीक है, तो वो जब इन्वेस्टिगेट करती है उसमें ये दो फैक्टर जरूर रखती है, कास्ट तो है ही है, ठीक है, और एससी में तो कास्ट तो है ही, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस जो अदर कम्युनिटी ओबीसीज की, तो उसमें कास्ट तो देखती है, बट देन अदर फैक्टर्स लाइक ऑक्यूपेशन, मीन्स दैट इज पॉवर्टी कितनी है, ठीक है, राइट, उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के वो किसी कम्युनिटी को, ठीक है, ओबीसी डिक्लेयर कर सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसके साथ एक और दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होते हैं कि हु डिसाइड्स दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इज एससी, ठीक है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी, नहीं कमीशन को तो बाद में जाता ना मैटर, अदरवाइज कमीशन तो हमने बाद में स्टैब्लिश किया ना, अरे कमीशन पहले थोड़ी था, ये तो हमने, इसको कहते हैं हम गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ उसमें पॉलिटिक्स ना आ जाए, कि क्या पता कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वोट लेने के लिए उसको ऐसे डिक्लेयर कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये थोड़ी चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू ब्रिंग दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर इन द पेल ऑफ पॉलिटिक्स। तो फिर क्या, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, मीन्स यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करती, एक ही लिस्ट बनती है अंडर आर्टिकल 341 of the constitution, it is the president of India, yeah, it is the president of India who is empowered to notify a particular community as scheduled caste community or scheduled tribe community, ठीक है। आर्टिकल 342 में एसटी, 341 में एससी, प्रेसिडेंट, उसमें कोई चेंज करनी है, लास्ट टाइम में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, ठीक है, और उसमें कोई चेंज करनी है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये था, हु डिसाइड्स ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एज ए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। गवर्नर पूरी जो भी रिकमेंडेशन होगी सरकार की प्रेसिडेंट को भेज देगा, प्रेसिडेंट उसको लिस्ट में डाल दे, ठीक है, एंड व्हेन एवर देयर इज एनी चेंज इन दैट लिस्ट, उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन 341 में, 342 में ये लिखा है, 342 ट्राइब्स के लिए, 345, तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट, कि कौन डिसाइड करता है। जब हम एससी एंड एसटी की जहाँ रिजर्वेशन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन राइज होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन रिजर्वेशन बी अवेल्ड बाय समवन बाय वे ऑफ ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि आपने रिजर्वेशन लेने के लिए, राइट,
एक दलित लड़की से शादी कर ली, ठीक है, या आपने आपको अडाप्ट करा लिया, ठीक है, क्लियर, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है, मेरा मतलब दलित छोड़िए ओबीसी में चले गया, ठीक है, माइग्रेशन या ट्रांसप्लांटेशन से रिजर्वेशन मिलती है, आंसर इज नो। दिस क्वेश्चन बाय सेटल्ड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट, राइट, केस भी याद रखना, वालसम्मा पाल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी, वालसम्मा पाल, कोचीन यूनिवर्सिटी, आई थिंक 1996 का केस है। वालसम्मा पाल वर्सेस, अब इसकी स्टोरी छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, देखो इस दिमाग में बैठ जाएंगे ना आपकी चीजें, कभी आपको क्वेश्चन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है सुरभि, कुलनूर, Yes, sir. Yes, sir. या क्या क्वेश्चन आपका? वेकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक भी मैं भी हूं ना, ब्राह्मण भी तो हूं, ब्राह्मण, उसमें तो कोई भी हो ना ईडब्ल्यूएस, यार हद होगी, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ईडब्ल्यूएस आप भी हो, ईडब्ल्यूएस एनीवन, यार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उसमें कास्ट तो एक फैक्टर है, बट मोस्टली क्या फैक्टर है उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट तो है ही है, मीन्स अगर मैं लोअर कास्ट का हूं तो मैं डेफिनेटली सोशली बैकवर्ड हूं, एक फैक्टर है, बट वो सोल नहीं है, उसके साथ मेरी इनकम वो भी देखी जाएगी, मेरी किस टाइप के ऑक्यूपेशन में हूँ, ठीक है, कितनी मेरी इनकम है, राइट, बट अगर मैं फॉरवर्ड कास्ट में पैदा होता हूँ, बेशक मैं गरीब हूं, तो अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था ना, ठीक है जी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था ना, तो फॉरवर्ड कास्ट वालों को भी अब ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट है, प्रोवाइडेड आपकी इनकम पर एनम इतनी है, जो कि 8 लाख प्रिस्क्राइब की है, ठीक है, सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है, ये है ना, ठीक है, अब मेरी बात समझे, ठीक है, इसको नहीं माना था, इसको, इस क्राइटेरिया को, इवन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन के जजमेंट के बाद, ठीक है, एक सॉरी मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, अभी जजमेंट नहीं आ रही, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आपको बताऊंगा कि मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ठीक है, मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसमें थोड़ी वो ट्वीकिंग की थी, उसमें एक ट्वीक थी कि 10% रिजर्वेशन, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में, ठीक है, हमने सुना है कि इतने लोग, इतने स्टूडेंट ने आत्महत्या कर दी, दिल्ली में इतने स्टूडेंट ने आग लगा दी अपने को, दिल्ली वॉज द वर्स्ट, ठीक है, एपिसेंटर ऑफ दिस, पर्टिकुलरली द गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है, जेएनयू वाज द हॉटबेड, ठीक है, तो जब इतना प्रोटेस्ट उन्होंने किया, तो उस प्रोटेस्ट को, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट करने वाला उसको मैड प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दिया गया, ही वॉज वीपी सिंह, 1990 में उसने इम्प्लीमेंट की थी ये, कौन सी? मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, पॉलिसी ऑफ मंडल कमीशन, ठीक है, इसको मेमोरेंडम ऑफ मंडल कमीशन कहते हैं, ही इम्प्लीमेंटेड इट which had recommended 27% reservation for OBCs, कितनी? 27%, ठीक है, 27 आपको क्यों उसने रिकमेंड की थी? क्योंकि ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट reservation in any case beyond 50% would be unconstitutional, fraud, Supreme Court will strike it down, ठीक है, otherwise he had recommended that around 50% population of India is backward, ठीक है, ये रिकमेंड किया था, बट ही कुड नॉट हैव गिवन दिस recommendation except 27% recommendation for reservation OBCs, besides 50% for SCs and 7.5% for STs, so which closely coming to around 50%, ठीक है, तो उसमें 10% रिजर्वेशन भी थोड़ी जैसे कहते हैं कि टू ऑफसेट द प्रोटेस्ट दैट वाज गोइंग ऑन, ठीक है, इन द कंट्री, स्पेशली फ्रॉम द फॉरवर्ड कास्ट स्टूडेंट्स की, हमारा तो काम ही खत्म हो गया, 50% सीटें इधर चलेगी तो हमें मिलेगा क्या, ठीक है, पहले नहीं था ना ऐसे, पहले तो SC एंड ST के रिजर्वेशन तो सारे अग्री करते थे, और राइट फ्रॉम डे वन थी, अरे 16(4) तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1950 में ही डाल दिया था, 16(4) की बात करो, 15(4) की नहीं, कौन सी? 16(4) की, राइट, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब स्टूडेंट्स को लगा माय गॉड ये 27 इनको मिला के 50% सीटें तो आ भी लेंगे, तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन,
दैट्स वाई। तो उनको ऑफसेट करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में एक ट्वीक कर दी और उसने उस पॉलिसी में, रिजर्वेशन की पॉलिसी में क्या कह दिया कि 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्व होंगी, जिसको मंडल कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और बड़ा लॉजिक था 9 जज बेंच का। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मान सकते हैं बहुत बड़ा, बट इंडिया इज इनवेरिएबली इकोनॉमिकली पुअर, तो फिर हर बंदा ही गरीब है इधर। ठीक है, प्रिडोमिनेटली हमारी पॉपुलेशन गरीब है। अरे वेल्थ तो 1% लोगों के पास है। ठीक है, तो एक, और सेकेंडली दूसरा जो उन्होंने लॉजिक दिया, ठीक है, जेवर रेड्डी की जजमेंट बहुत जबरदस्त, मैं इसलिए आपको पूरी स्टोरी बता। दूसरा उन्होंने लॉजिक दिया कि ये परमानेंट नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज नॉट ए परमानेंट। क्यों परमानेंट नहीं है? आज आप अमीर, आज आप गरीब हो, कल को क्या पता आपके हालात चेंज हो जाए, कोई भी फैमिली से आपका नौकरी में चला जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? इट इज नॉट परमानेंट, इसलिए इकोनॉमिकली पॉवर्टी रिजर्वेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, बट मोदी जी की सरकार ने, अब ये डिपेंड करता है ना कैसे, मोदी जी सरकार ने इसी चीज को वापस लाया। ठीक है, एंड इट वाज चैलेंज्ड इन जनहित, कौन सा अभियान केस में, इसमें इट वाज चैलेंज कि ये 10% रिजर्वेशन उसमें कहा था, तो कोर्ट ने इसको, अब जजेस का माइंड भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, 90 मतलब 90 आप समझ लो कि अराउंड 25-30 साल के बाद अगर कोर्ट उसको देख रही है तो कोर्ट ने अलग लेंस से देखा। ठीक है, और उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, जनहित अभियान केस में अप्रूव कर दिया। ये स्टोरी है इसकी। क्लियर? तो 15-5 जो मैंने आपको बताया, तो वलसमा पाल का मैंने आपको जो केस बता रहा था, ये दूसरा मैं आपको क्या बताता था, रिजर्वेशन की पूरी स्टोरी, सो दैट आप उसको पूरे तरीके से समझ सको। इसमें एक कैथोलिक सीरियन है और एक लैटिन कैथोलिक है, एक क्रिश्चियनिटी की दो क्लासेस कह लो केरला में। ठीक है, जो जो सीरियन क्रिश्चियन एंड सीरियन क्रिश्चियन एंड लैटिन क्रिश्चियन, कैथिन लैटिन, जो सीरियन है वो फॉरवर्ड है। ठीक है, और लैटिन क्रिश्चियनिटी जो लैटिन कैथोलिक्स हैं वो बैकवर्ड है। ठीक है, वर्षमा पाल जो कि सीरियन क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती थी, उसने लैटिन क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली। ठीक है, जो कि ओबीसी था। कोचीन यूनिवर्सिटी में अब एक प्रोफेसर की लेक्चरशिप के लिए नोटिफिकेशन निकलती है, जो कि रिजर्व थी ओबीसी के लिए। क्लियर? किसके लिए रिजर्व थी? ओबीसी के लिए। नाउ शी क्लेम्ड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी। ठीक है, शादी के बाद। ठीक है, ओबीसी, देखो कितनी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, अब ये क्लेम करती है और सिलेक्ट भी हो जाती है। अरे ओबीसी कैटेगरी की सीट थी तो उसमें सेलेक्ट भी हो जाती, बिकॉज शी वाज मेरिटोरियस और व्हाटएवर। नाउ हर सिलेक्शन वाज चैलेंज्ड, द सुप्रीम कोर्ट struck it down and it held that any person who claims any quota by virtue of marriage, जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, माइग्रेशन, by any way into SC and ST category, ठीक है, cannot claim this reservation because it will be a fraud on the constitution. You will be committing a fraud on the constitution because reservation is a kind of facility that is provided by the state in order to do historical injustice, do away with historical injustice which has been meted out to these sections of the society. Since you had an advantageous start in your life as a forward class caste, right? You haven't suffered such disadvantages, the historical injustice. You or anyone for that matter, right? How can you claim the benefit of that? Basically reservation is to do away the historical injustice. ये फैसिलिटी है किसी, ठीक है, और यहाँ से वलसम्मा पाल के केस से अब स्टोरी खत्म होगी कि रिजर्वेशन के साथ में ये सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, इसलिए मैंने आपको वलसम्मा पाल का केस में बताया। यस, नूर एंड सुरभि, Yes, sir. क्लियर, अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, sir. बस ये चीजें आपने समझनी। राइट, व्हाट अबाउट अदर्स? सुरभि, पर्श, काव्या, वेयर आर दीस गाइज एंड other girls? So I didn't have a word with them. Hmm? I didn't have a word with them. अच्छा, I'll ask them. okay, please do that.
ऑलराइट, चलिए जी, आर्टिकल 15(4) पता लग गया आपको। आर्टिकल 15(5) मैंने आपको प्राइवेट और 2 केस आपने उसमें समझ लेने कि किसकी कॉन्सिक्वेंस में वो अमेंडमेंट डाली गई, 93rd अमेंडमेंट। वो कॉन्सिक्वेंस था टीएम पाई फाउंडेशन केस एंड पीए नामदार केस, ठीक है। एंड 15(6) वाज एडेड बाय, ठीक है, दैट वाज, ये किसी कोई जजमेंट की बात नहीं थी, दैट वाज द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑफ मोदी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड economically weaker sections a reservation, and it did that by bringing in 106th constitutional amendment, 103rd constitutional amendment, and under which 10% reservation to EWS since 2019 has been operationalized in our country. It was challenged in Janhit Abhiyan case, but it was upheld by the court by a constitution. ठीक है जी, ये स्टोरी है जी आर्टिकल 15 और 16 की। क्लियर? यस, कोई डाउट है आपका मुझे पूछ लीजिए प्लीज। No, so it's clear. क्लियर? ठीक है, तो ये इसलिए मैं इनको दोनों आर्टिकल को साथ साथ पढ़ा रहा था आपको, बट सिर्फ आपने याद रखना है कि एजुकेशनल एंड सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ये 2 टर्म यूज की हैं, ठीक है। इसलिए कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। सोशियोलॉजिस्ट जो है, सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले, वो कहते हैं कि कास्ट इज क्लास इन इंडिया, माना जाता है कास्ट इज क्लास, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम कास्ट को सिर्फ अलाउ नहीं करती टू बी यूज्ड टू डेजिग्नेट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एज socially and educationally backward or OBC for that matter. We have to fulfill many other criteria, and it has been clarified by the locus classicus Balaji's case. It has been continued further, okay, right? Although उन्होंने माना कि caste is one of the factors, but cannot be used as the sole factor. Is that clear? Even state can provide reservation to such communities without using caste as a criterion. ठीक है, state सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को कास्ट के बिना भी आइडेंटिफाई करती है, कर सकती है। वही चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में, ठीक है, किया गया। यहाँ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी को किस बेसिस पे डिसाइड किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी। चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ चित्रलेखा। वेल, ये जितना डिटेल में पढ़ोगे, चित्र याद नहीं रहने की बात है यार, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। देखो, अगर आप मार्क माय वर्ड्स, अगर आप लॉ में जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तब थोड़ी केसेस में जाता हूँ, चीज़ तो वही है ना, ठीक है। तब सिर्फ कंसेप्ट बताना आपको, ठीक है, तब आपको सिर्फ बताना है इक्वालिटी क्या होता है। वहाँ इक्वालिटी हम लीगल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। वहाँ हम इक्वालिटी बोलते हैं कि इक्वालिटी के एक डायमेंशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, वही आर्टिकल 15 कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी 3 तरह की होती है बेसिकली, ठीक है। एक होती है फॉर्मल इक्वालिटी, एक होती है फाउंडेशनल इक्वालिटी। जब हम इसको कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फाउंडेशनल इक्वालिटी के बेसिस पे ही पूरी दुनिया में हर एक इंसान को, जहाँ मर्जी वो रहता हो, जिस मर्जी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जो उसकी मर्जी नेशनैलिटी है, उसको बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमन राइट इज द यूनिवर्सल करेंसी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, क्योंकि इट रिकग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इसको कहते हैं मॉरल वर्थ। ह्यूमन बींग्स की मॉरल वर्थ एक जैसी है दुनिया में जहां मर्जी चले, इसलिए ये सुपर नेचुरल, क्योंकि इसको भगवान ने बनाया ना, इसलिए उनको ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। ये कौन सी इक्वालिटी है? फाउंडेशनल इक्वालिटी। दैट्स व्हाई ह्यूमन राइट्स कभी भी डिनाई नहीं हो सकते किसी भी इंडिविजुअल को, जहां मर्जी वो रहता हो, ठीक है, क्लियर? तब उस, बट यहाँ हम लीगल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो लीगल पर्सपेक्टिव में कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ही पूछी जाएगी ना, आपको केस लॉ तो पूछेंगे नहीं, तो आपको केस लॉ में कैसे लॉ इवॉल्व हुआ, यू आर सपोज टू नो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो जी, कहां तक लिखा था हमने? हो गया ना? हाँ, 51 में हमने लिखा नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट कलर। अच्छा, एक और डिफरेंस है 15 और 16 में अभी समझ लेना। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों इक्वालिटी के हैं, ठीक है। एक तो आर्टिकल 15 इक्वालिटी हर एक फील्ड में अलाउ करता है,
ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज या इक्वालिटी। आर्टिकल 16 रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सिर्फ उसकी। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है, आर्टिकल 15 मेंशंस ओनली 5 ग्राउंड्स on the basis of which you cannot discriminate any citizen of India. ठीक है, caste, color, sex, religion and place of birth. Whereas Article 16 uses 7 grounds. इसमें 2 ग्राउंड एडिशनल है। क्या कितना जरूरी है? एक का है डिसेंट एंड दूसरा है रेजिडेंस। 2 ग्राउंड और भी मेंशन्ड है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिसेंट तो आपको पता ही है कि यू आर फ्रॉम यूरोपियन डिसेंट या यू आर फ्रॉम दिस डिसेंट। ठीक है, तो डिसेंट के बेसिस पे भी आप किसी को नौकरी लेने से प्रोहिबिट नहीं कर सकते कि आप इस डिसेंट से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्लियर? ठीक है, रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ बर्थ। रेजिडेंस इज नॉट प्लेस ऑफ बर्थ। रेजिडेंस इट मीन्स डोमिसाइल। दैट्स व्हाई। हाँ हाँ, डोमिसाइल किसका? हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि सपोज you are a domicile या you are a resident of चंडीगढ़। ठीक है, it does not mean that you cannot apply for हिमाचल प्रदेश सर्विसेज, you cannot apply for राजस्थान सर्विसेज। ठीक है, राइट। इसमें एक सिर्फ 16(3) में एक छोटी सी एक्सेप्शन कार्व आउट की है कि स्टेट कुछ नौकरियों में अपने डोमिसाइल या रेजिडेंस को प्रेफरेंस दे सकती है। ठीक है, आर्टिकल 63 में, वो भी अगर पार्लियामेंट उसके लिए कोई कानून बनाती है तो। ठीक है, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 16(3) में जो एक्सेप्शन थी वो अप्लाई होती थी कुछ एरिया में, जैसे त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बट सिंस दिस एक्ट हैज लैप्स्ड, 57 का एक एक्ट था, अब ये एक्सेप्शन कहीं भी अप्लाई नहीं होती। नाउ यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू अप्लाई फॉर सर्विसेज एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो एक तो आपने ये याद रखना। ठीक है, 16 कौन सा 16 सॉरी 16 आर्टिकल में डिसेंट एंड रेजिडेंस हैव बीन यूज्ड, ठीक है, स्पेसिफिकली एज द एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इन ग्राउंड पे भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डन? ठीक है, बाकी 16(4) वही आ गया। 16(4) इज परिपासु। परिपासु का मतलब उसका पैरल है आर्टिकल 15(4). ठीक है, राइट। ओनली डिफरेंस दैट आर्टिकल 15(4) यूजेस कॉन्शियसली द टर्म socially and educationally, whereas article 16(4) uses only backward. That is the difference. Okay, only backward class. And by virtue of this reason we have the concept of OBCs which are almost same. इसलिए other backward classes उसमें subsume होती है, ठीक है, इंक्लूड होती है। ठीक है, राइट। यहाँ वो कास्ट भी उसमें मैटर नहीं करती। ठीक है, उसमें कास्ट भी मैटर नहीं करती क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में ब्राह्मण भी आ सकते हैं प्रोवाइडेड वो क्राइटेरिया फुलफिल। क्लियर? राइट। चलो जी लिखते हैं। कहां तक लिखा था हमने आर्टिकल 15? यस, कहां तक लिखा था हमने? सुरभि एंड कुल्लूर 15 क्लास 1 कहां तक लिखा था हमने? प्लीज डू दैट। क्लास 1। ठीक है, ठीक है, ये यहां तक लिखा था। आगे आ गया 15(2). ये इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। 52 मैंने मतलब आपको ब्रीफ सिर्फ पूरा बताने के लिए सिर्फ ब्रीफ लिखवा रहा हूं। 52, दिस क्लॉज imposes a ban even on a private individual for imposing any liability or disability ठीक है, और restriction on any citizen
with regard to his access to a shop, wells, bathing guards, ठीक है, समझ गया, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है, और आगे लिखे और एनी प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, बाकी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है समझना, ठीक है, पब्लिक रिजॉर्ट, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a place of public resort is a place, public resort is a place okay, to which public has access and it frequently goes to that place, मतलब एक ऐसी प्लेस, देखो एक दो इसमें ओपिनियन थे कोर्ट के, उन्होंने पब्लिक रिजॉर्ट का जब उनके पास सामने क्वेश्चन आया उन्होंने बोला कि पब्लिक रिजॉर्ट, एक व्यू ये था कि पब्लिक रिजॉर्ट ऐसी प्लेस जहाँ पब्लिक का एक्सेस है एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट, एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट, ठीक है, ये टर्म ये क्या हो गई, लीगल राइट, मेरी बात समझ, एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट, वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव टर्म होगी ना, ठीक है, एक सपोज मेरा लैंड है यहाँ, ठीक है, यहाँ मैंने बाई वे ऑफ कस्टम, ठीक है, मैंने उनको, कोई भी आ सकता है, ठीक है, वहाँ यू नो मेरा एक फार्म हाउस है, वहाँ घूम फिर सकता है, ठीक है, जा सकता है, क्लियर, ठीक है, और कब से चलता आ रहा है, ठीक है, अब वो फ्रिक्वेंटली पब्लिक उधर जा रही है, वो प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट बन गई, इवन दो इट्स माई प्लेस, ठीक है, उसमें लीगल राइट, तो पहली वाली जो इंटरप्रिटेशन थी कोर्ट की, वेयर पब्लिक हैज एक्सेस टू एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट, वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव होगी ना, मतलब लीगल राइट बन गया ना उनका एक्सेस, अब उनका उनने वाइडर इंटरप्रिटेशन क्या दी, ऐसी प्लेस जहाँ पब्लिक एक्सेस है, ठीक है, और वहाँ वो फ्रिक्वेंटली जाती, जैसे पार्क्स हो, ठीक है, तो आर्टिकल 15(2) ये इसका ये प्रोविजन आप ये कह सकते हो कि इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ हिस्टोरिकल liabilities or disabilities which used to be in the Indian society due to वर्ना सिस्टम, आपको पता होगा कुछ पानी लेने के लिए मना था, सड़क में नहीं जा सकते थे, ठीक है, ठीक है, ऑल्दो इट वाज नॉट perpetuated to such an extent during British rule, but still in villages ऐसा अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम चलता आया था, मतलब एक किस्म की अनटचेबिलिटी है ना ये सारी प्रोविजन जो है ये अनटचेबिलिटी को ही अबॉलिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आप किसी भी जगह, किसी भी मंदिर में, किसी भी पार्क में, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में, प्रोवाइडेड पब्लिक, प्राइवेट है वहाँ लिखा होता है राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व, ये लिखा है विच इज फंडेड बाय द पब्लिक, ठीक है, विच इज मेंटेन्ड बाय द पब्लिक, मेंटेन्ड बाय द पब्लिक मीन विच इज मेंटेन्ड आउट ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी, यहाँ लोगों के टैक्स का पैसा लगता है, देख ले उसके ऊपर, तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी को खत्म करने का एक प्रोविजन रखा हुआ है, ठीक है, एंड दिस प्रोविजन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द स्टेट बट ऑल्सो ऑन द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल, ठीक है जी, आइए 15(3) 15(3) provides that the state can make special provisions for the welfare of women and children. Special provisions for the welfare of women
and children. Clear? Full stop. This is purely an enabling provision. And is not a mandate on the state to make special provisions for the welfare of women or children. For the welfare of women or children. Enabling provision है ये, ठीक है? As the provision of reservation is, वो भी enabling है ना? As a provision of reservation is. However, okay. However, the expression used in this clause has been interpreted widely to mean to mean not only a provision of reservation, for women, but any other measure कोई भी for their welfare and advancement. For their welfare and advancement. ठीक है? ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि some आप for example आपको somewhere in Chandigarh some post of the principal reserved only for women. It was challenged as being discriminated only on the ground of sex. Clear? But the court repelled this challenge and held that it is justified under Article 15(3). ठीक है, आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, केस भी लिखने के जब नहीं आता ना तो समवेयर इन चंडीगढ़ आप ऐसे कर सकते हो, कभी याद नहीं आता, जस्ट टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग. ठीक है, नीट नॉट केस, मतलब हमने हमेशा ऐसे किया, अगर वो केस भूल जाता है तो ऐसे लिखा समवेयर इन, पता तो है ना, फैक्ट तो पता है ना कैसा हुआ था. क्लियर? ठीक है, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए. ठीक है जी. यस नूर एंड सुरभि, क्लियर? राइट. आइए जो 15(4) द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हम बात करें. 3 तो हो गया आपको. ठीक है, तो आप रिसेंटली ये भी लिख सकते हो उसमें कि रिसेंट अमेंडमेंट providing 33% reservation to women in legislative bodies. ठीक है, right, 33% seats, right, is the application of Article 15(3). ठीक है, and by 73rd amendment 33% reservation in local bodies for women at the post of panchayat and sarpanch, right, is the application of Article 15(3). Clear? Although देखो कितना अच्छा है, although इसमें ओनली ग्राउंड है, सिर्फ समझा करो ना, इसमें ओनली सेक्स यूज हो रहा है. अरे वी आर नॉट यूज, मैंने पहले आपको बताया था कि ओनली दिस ग्राउंड है, ओनली द ग्राउंड विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट. ओनली सम अदर थिंग्स, अदर मैटर्स मस्ट आल्सो बी अटैच्ड. यहाँ कोई मैटर नहीं है, बट पावर कौन दे रहा है? 15(3). क्लियर? तो आने वाले टाइम में आप ये भी मतलब ऐसा सरकारें नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल बी, आप ये कह सकते हो कि दैट विल बी ए काइंड ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे. बट इट इज़ वेरी मच परमिसिबल टू प्रोवाइड reservation for women in UPSC, in state services, everywhere, by invoking Article 15(3). इसलिए तो मैंने बोला था इसमें सब कुछ आएगा.
चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, चाहे हम जॉब्स की बात करें, चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें। 63 पे ना, 63 तो है ही नहीं ना, 63 थोड़ी है सर, 63 तो वो है ना कि रेजिडेंस के बेसिस पे आप, ठीक है, कुछ नौकरियों में रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। सपोज इन यूटीआर, सपोज सर्टन कैटेगरी ऑफ पोस्ट इन यूटी चंडीगढ़ कैन बी रिजर्व फॉर रेजिडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ ओनली। उसमें वुमेन का थोड़ी है, वुमेन तो सिर्फ 53 में लिखा ना, वुमेन कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। वुमेन का प्रोविजन सिर्फ 15(3) में लिखा हुआ है, और इसलिए 15(3) में डाला गया इसको प्रोविजन को, क्योंकि 16(4) में कोई रिजर्वेशन की बात नहीं थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आपको आगे देखो ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 15(3) वुमेन की जब बात होने लगी ना, तो उन्होंने कहा कि वुमेन को कुछ तो अफर्मेटिव, ठीक है, एक्शन वुमेन के फेवर में होनी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में 15(3) डाल दिया। उसके अलावा रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं थी ना 15 आर्टिकल में, ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। ये तो कितनी स्टोरी तो बता नहीं मैंने, ठीक है। नहीं तो वहाँ अगर हम उस वक्त ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अगर सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात कर रहे होते, फिर तो वुमेन की रिजर्वेशन की भी बात होती ना, फिर उनको दे रहे हो तो इनको भी दो। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये तो आउटकम था फर्स्ट अमेंडमेंट का, वो आउटकम था दो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नेहरू जी के टाइम। इज दैट क्लियर, तो मैंने पहले स्टोरी बता चुका। आइए जो 15(4) पे, 15(4), 15(4), ओके। तो आपको इतना लिखो सर, आर्टिकल 15(4) वाज इंसर्टेड, right, as an outcome of two important judgments of the Supreme Court, ठीक है, right, wherein on the ground of Article 15(1), reservation, on the ground of Article 15(1), reservation, ठीक है, इधर लिखना, इन ए सर्टन स्टेट wherein on the ground of Article 15(1), अरे 15(1) क्या था, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, लिखा ना, ठीक है, Yes, sir. यस। तो उसकी ग्राउंड पे यहाँ चैलेंज हो ना, तो आर्टिकल 15(1) क्या एज ए आउटकम व्हाट, in a certain state were struck down as being discriminatory, ठीक है, only on the ground of caste, ठीक है। आप इसको, राइट, आप इसको ना भी लो। दिस हैपेंड इन चंपाकम द्रोयराजन केस, चंपाकम, चंपाकम, चंपाकम द्रोयराजन केस 1951, wherein the Madras government, the then Madras government, ये लिख दो चाहे, issued an order ठीक है, allotting
seats in the state medical colleges okay community wise ठीक है this order of the Madras government was declared invalid अरे क्या था ऑर्डर क्या था क्रिश्चियन को एक सीट मिलेगी सपोज एक्स नंबर सीट मिलेगी क्लियर मतलब आप ऐसा करो राइट व्हाट यू कॉल उसमें क्रिश्चियन भी थे उसमें एंग्लो इंडियन भी थे राइट उसमें दलित भी थे एससी भी थे ठीक है इस बेसिस पे दो ग्राउंड पे इसको चला किया कि ओनली आपने रिलीजन जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम को कह दिया ओनली रिलीजन ओनली कास्ट आपने फैक्टर लिया जो कि 15(1) प्रोहिबिट कर क्लियर राइट मद्रास गवर्नमेंट ने अपनी प्ली ली कि ये सब कुछ हमने जी आर्टिकल 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें हमारे ऊपर ड्यूटी लगाई है संविधान ने कि आपने वीकर सेक्शंस की एडवांसमेंट के लिए काम करना है ये वीकर सेक्शंस है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेड नहीं है वीकर सेक्शन उसको कहते हैं जो मेजॉरिटी से कम है ठीक है तो हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पॉलिसी जो ऑर्डर इशू की है इसको कम्युनल गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं कम्युनल जियो गवर्नमेंट ऑर्डर ठीक है चेक क्या लिखा आपने invalid on the ground that it classified students मैं कम्युनिटी वाइज लिखा ना इट क्लासिफाइड स्टूडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन ठीक है ठीक है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय 15(1) and hence it was declared unconstitutional ठीक है because there is no such provision in article 15 पैरेलल टू आर्टिकल 16(4) मैंने एक चीज बताई थी ना आपको 16(4) अब इसको वर्सेस 16(4) लिख दो इसमें नौकरियों में रिजर्वेशन डे 1 से लिखी थी संविधान में ये नहीं था ठीक है आप समझ आ रहे हैं ठीक है कि अगर आपने 16(4) में क्योंकि सिंस दिस इज a case of admission to a medical college which is not a job community wise hence it is violative of article 15 article 15(1) had it been 15(4) originally in the constitution it would have been justified ठीक है फिर आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड उनको बना सकते थे ठीक है जी राइट इन अनदर केस in the 1950s wherein a government order for the construction of a colony for Harijans was also held to be discriminatory for Harijans was also held to be discriminatory under article 15(1) ठीक है clear given these
judgments, right? Given these judgments, right, in order to provide for the welfare of backward classes, First Amendment of the Constitution First Amendment of the Constitution inserted 15(4), right, in 1951, which now provides as follows. वो ब्रैकेट में लिख देना, as follows. The state is not prevented from making any special provisions for, अब इसको अंडरलाइन करना है, for the advancement is very important. मतलब advancement includes anything, not only reservation. Just like women के लिए 15(3) में हमने पढ़ा, इसमें भी, ठीक है, एडवांसमेंट के लिए कुछ भी किया जा सकता है, स्कॉलरशिप से लेके हाउसिंग सोसाइटी तक, ठीक है, फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री कोचिंग, व्हाटएवर, ठीक है, नॉट ओनली restricted to admissions, it is applicable to everywhere for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, और आगे साथ में लिखा, और for the scheduled castes and scheduled tribes, for the SC and STs. ठीक है, इन दिस सेंस ये आपने जो सका, ऑल्दो आर्टिकल 16(4), ठीक है, 16(4) कह रहा हूं, ठीक है, इज on the similar lines as article 15(4), but the scope of 15(4) is wider. The scope of 15(4) is wider than 16(4), ठीक है, वही बता, because 15(4) by using the word advancement can include within it several kinds of positive action programs. एडवांसमेंट आ गया ना, समझ गए आप? यस, नूर एंड सुरभि, डिड यू अंडरस्टैंड? पॉजिटिव एक्शन प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव एक्शन प्रोग्राम, इट वाज चैलेंज्ड इन फैक्ट इन मंडल कमीशन केस आल्सो, कि 16(4) and 15(4) are couched का मतलब in the same language, मतलब they mean the same thing, but Supreme Court rejected this contention on the ground that Article 15(4) uses the word या expression advancement, which covers many positive action programs in favor of
OBCs or SC and STs are on. Many positive actions, which includes everything. Okay? Whereas 64 is restricted only to affirmative. Affirmative action का मतलब सिर्फ reservation की बात करता है. Clear? क्या लिखिए? Positive action programs ranging from reservation to housing to scholarships, etc. Okay? Okay? It means that 15.4. It means that 15.4 broadly, 15.4 broadly deals with the concept of reservation for SCBCs, socially and educationally backward classes. Right? A question may be asked. Question पूछा जा सकता. Question may be, who are SCBCs? देखिए, a question may be asked, who are SCBCs? What criteria can be applied for the determination of SCBCs? After all, for the determination of SCBCs, criteria क्या use होगा? After all, this is not a simple question, as sociological and economic. Sociological पता है ना, सोसाइटी में क्या स्टेटस है उनका, ठीक है? Sociological and economic consideration do come into play. ठीक है? In evolving a proper criteria ठीक है? After all, 15.4 after 15.4 does not lay down any such criteria for designating बैकवर्ड क्लासेस. इनको ओबीसीज भी कह सकते हो. अब आप ब्रैकेट में क्या लिखो? ओबीसी. क्या होगा? एससी एंड एसटीज तो ऑलरेडी हो गए ना, ओबीसीज. Right? Hence, this question was mainly left for the courts to decide. This question was mainly left for the courts to decide. And from the several judicial pronouncements, ठीक है, फ्रॉम द सेवरल जुडिशल. देखो, अगर स्टेट किसी को भी एससीबीसी बना देती है तो इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है? ये नहीं है कि स्टेट की फुल पावर है. स्टेट की उस डेजिग्नेशन को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, राइट, आप अगर आप एससीबीसी अनाउंस करते हो, सपोज इट हैपन इन द केस ऑफ मराठा रिजर्वेशन की बात चल रही थी ना, आर यू गेटिंग मी? एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट इवन प्रोवाइडेड दिस वन रिजर्वेशन टू मराठास. तो उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चली. इसको मराठा रिजर्वेशन केस भी कहते हैं. ठीक है? इसको चीफ मिनिस्टर वर्सेस पाटिल केस भी कहते हैं.
2023-24 में आया, ठीक है। उसमें इंटर आलिया मैनी फैक्टर्स, उसमें यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड है कि नहीं है, ओबीसी में फॉल करती है, ठीक है। फिर उसमें देखा जाएगा कि सबसे बड़ा क्या रहेगा कि उनका सोशल स्टेटस क्या है। कैन मराठास बी क्लासिफाइड एज सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड? The answer would be no, because Marathas are the most progressive people in Maharashtra. They have occupied all top positions, not only in the bureaucracy as well as in the political circles, and they are economically power also. So hence, ठीक है। स्टेट ने क्या, स्टेट फॉर द हेक ऑफ पॉलिटिक्स या वोट बैंक या प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है ना इनके, प्रेशर ग्रुप्स की, ठीक है। अगर स्टेट डेजिग्नेट भी कर देते हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सेम हैपेंड इन हरियाणा व्हेन हरियाणा गवर्नमेंट, right, announced जाट्स एज ओबीसीज, जाट्स को, ठीक है। वही क्राइटेरिया उन्होंने देखा, कौन सा वाला, मीन्स कम ऑक्यूपेशन, देखो ना, मीन्स कम ऑक्यूपेशन कहाँ है, किधर हो, तो उन्होंने पाया कि अरे सारे जाट्स हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, सारे जाट्स नेता हैं, ठीक है। क्लियर, एक एक जाट 20-20 लाख की तो गाड़ी रखते हैं, राइट, तो आप उनको ओबीसीज कह रहे हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये सारी कंट्रोवर्सी है। स्टेट तो करेगी तभी तो, ये अपना याद रखना, इट इज सब्जेक्ट टू द रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स, बट फ्रॉम द सेवरल pronouncements some of the following propositions have emerged, propositions have emerged in this regard. Okay, in this regard, number one, the landmark case of M.R. Balaji versus State of Mysore, 1963. M.R. अब बालाजी लिख दो, सिर्फ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट ऑफ 1963, ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड as the locus classicus on this matter. As a locus, क्लासिकस एक टर्म होती है, लोकस क्लासिकस, what's the meaning of this? this means simply trendsetter. It's a legal term, ठीक है। Any case या any matter which becomes a kind of trendsetter, that is described as, in judicial terms, it is called as locus classicus. Is that clear? Right? Keshwananda Bharati case is a locus classicus in the context of limiting the powers of the parliament. Locus classes, यहाँ कोई चीज ट्रेंड सेटर बन जाती है, ठीक है। तो बालाजी वर्सेस क्या लिखा आपने, on this matter, because in this case the court held that the backwardness as envisaged by Article 15(4), ये नोट कर लेना, बैकवर्डनेस, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड है ना, as envisaged by Article 15(4) is both social and educational. बैकवर्डनेस जो
कंटेम्पलेट किया आर्टिकल पेपर इज बोथ सोशल एंड एजुकेशनल। लिखा क्या है? सोशली एंड एजुकेशनल। ठीक है, ठीक है, बट नॉट ओनली सोशल और एजुकेशनल, social or educational. This means that a class to be identified as backward should be both socially and educationally backward. Okay. In the same case, the court also held that this social and educational backwardness is very much comparable ठीक है टू दैट ऑफ, ये बैकवर्ड किसके साथ कंपेरेबल होगी? टू दैट ऑफ SC and ST, SC and ST उनके साथ कंपेरेबल। ठीक है, it means that other than SC and STs, there can be other classes of citizens who are almost equally or somewhat less, यही है ना, equally or somewhat less backward than the SC and STs, and therefore some special provisions should be made in their favor. In their favor. In another case of the same era, मतलब उसी टाइम का, मतलब सेम era, that is जानकी प्रसाद परिमु, जानकी प्रसाद versus J&K, state of J&K, 1973, J&K, हाँ परिमु, PARIMW, परिमु, 73. The court held that poverty alone ठीक है, जैसे कास्ट लोन कहा ना, कास्ट नहीं हो सकती, ऐसे पॉवर्टी भी कहा ना, गरीबी, पॉवर्टी अलोन कैन नॉट बी द फैक्टर टू टेस्ट बैकवर्डनेस in the Indian society, because by and large people are poor in India and cannot be provided reservation.
राइट। अभी तो उसके बेसिस पे कह रहे हैं ना, क्या से 60 उसमें। हाँ हाँ, तो अभी उसको तभी तो चैलेंज किया था ना उसको कि इसको, अब तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर दिया ना इसको। अरे हो गए पुरानी जजमेंट को ओवर रूल करते थे, तो इस जनहित अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इसको। और भाई मंडल कमीशन में भी मना किया था उन्होंने। इस भाई कोर्ट का एक लाइन ऑफ एक्शन चलता है ना। मंडल कमीशन 1993 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉवर्टी या इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया नहीं माना था। यही रीजन था कि प्रेडोमिनेटली हमारी पॉपुलर, और मोर ओवर पॉवर्टी इज नॉट परमानेंट। मे बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है ना, मे बी पॉसिबल दैट टुमारो, हाँ जन ओवर रूल कर दिया, ठीक है। और इसलिए आपने पॉवर्टी का क्राइटेरिया निकालने के बाद तभी तो उन्होंने ये कहते हैं कि वंस बैकवर्ड डज नॉट मीन फॉरवर्ड बैक। इसी की वजह से उन्होंने क्रीमी लेयर का आइडिया भी दे दिया ना मंडल कमीशन में। मंडल कमीशन इज लोकस क्लासिकस इन द सेंस दैट इट प्रोवाइडेड 50%। तो हमने पहले देख लिया था किसमें, बायोलॉजी में। उसमें सबसे बड़ा आइडिया क्या दिया, सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या लेगा, क्रीमी लेयर का फॉर ओबीसीज, ठीक है। वंस बैकवर्ड डज नॉट मीन फॉरवर्ड बैकवर्ड। एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू अपलिफ्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देयरफॉर you cannot condemn a particular community to be forward backward, ठीक है। एंड therefore हर साल अब उसको ये कह दिया कि एट रेगुलर इंटरवल्स स्टेट एवेल्युएट करेगी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बैकवर्डनेस को, एवेल्युएट करेगी और फिर देखेगी वो क्रीमी लेयर मतलब बैकवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए हर साल आपको पता है ना, हर साल ये रिवाइज करती है, चलिए हर साल रिवाइज करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर कुन्नूर? Yes, sir. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, रिजर्वेशन, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, अरे उसका पार्ट है तो नंबर 2 लिखिए, 2। द कास्ट cannot be the sole factor for the determination of backwardness. Yes, right? Caste. Although it may be a relevant factor to define backwardness, a relevant factor to define backwardness, because okay, it is prohibited by Article 15(1). Okay, and secondly, yeah, and at the same time, it will not be applicable to those sections of the society or even religions or even religions which do not recognize caste as such. ठीक है, which do not recognize caste. हाँ बैटरी जा रही है इसमें, बस थोड़ा सा रह गया, which do not recognize caste as such. Fourth, the criteria like poverty, occupation, ठीक है, ये भी कंसिडर, पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन सारे मतलब कंसिडर, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, रहते कहाँ हैं, प्लेस ऑफ हैबिटेशन,
ठीक है, एक रिमोटेस्ट कार्नर में कोई लोग रह रहे हैं तो वो नेचुरली बैकवर्ड होंगे ना, बिकॉज वहाँ एक्सेस ही नहीं है बहुत सी चीज़ों की, तो हम उनको राइट। इसलिए सर्टेन स्टेट्स में आपको इन जे एंड के देयर यूज्ड टू बी ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन दैट इज कॉल्ड एज ओबीसी है ना, जैसे उनको कहते थे आरबीए, रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया, रेजिडेंट बैकवर्ड एरिया। अरे बैकवर्ड एरिया था जे में रिजर्वेशन, आरबीए मोस्ट पॉपुलर रिजर्वेशन है। बैकवर्ड एरिया मीन्स इफ यू आर लिविंग इन सम रिमोटेस्ट कॉर्नर, ठीक है, you know, which are far away from the township, ठीक है, you are backward, ठीक है, उसका रेजिडेंट बैकवर्ड कहते थे, एंड इट वाज ए डोमिनेंट रिजर्वेशन दे। यस, क्या लिखा, प्लेस, a place of habitation and other factors also contribute to backwardness, and therefore must be taken into consideration for the determination of backwardness. Last but not the least, the backwardness can also be defined without any reference to caste, ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस को बैकवर्ड उसके बिना भी डिसाइड, ठीक है। आफ्टर ऑल द कोर्ट emphasized that article 15(4) does not use the word caste, but ठीक है, use the word class या classes, use the word class या classes, and caste and class are not synonyms. This means that exclusion of caste can be a relevant factor for the determination of backwardness. ठीक है, it was on these grounds that an order of the Mysore government issued under Article 15(4) was declared invalid in Balaji's case ठीक है, because it used caste as the sole determining factor। ठीक है जी, समझ गए कि मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ आपको, फॉर बैकवर्डनेस, फॉर बैकवर्डनेस without paying regard to other relevant factors like poverty and occupation, poverty and occupation।
ठीक है, hence the Supreme Court sensed the danger of using caste as the sole criterion. Danger of using Caste as the sole criterion, singular, sole criterion means single criterion, sole criterion for the determination of social and educational backwardness. Although the court did realize that economic backwardness would rather provide a more reliable yardstick for the determination of yardstick को ना for the determination of social backwardness. ठीक है, क्यों? बिकॉज एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो आर्टिकल 15(4) में लिखी है इज मोस्टली द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ठीक है, ये कोर्ट ने कहा. ठीक है, ये कोर्ट ने कहा. क्लियर? अब इसका अल्टीमेट कंक्लूजन जो कि आर्टिकल 16 के साथ भी हम पढ़ेंगे, अब उसका अल्टीमेट कंक्लूजन हम पढ़ेंगे कल की या नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मंडल कमीशन केस जो कि सारी स्टोरी खत्म कर देता है. ठीक है जी. बट फिर भी मैं जाते जाते आपको बता दूं कि ये सारी आपने पढ़ ली है. इसमें जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट केस और लोकस क्लासेस आपने याद रखना है. 15(5) मैंने आपको पहले बता दिया था. 15(5) में सिर्फ इतनी बात है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन फॉर SC and ST एंड OBCs जो हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कर रहे हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी. दैट इज द आउटकम ऑफ 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड राइट टू अनडू टू इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था. कौन से? TM Pai फाउंडेशन, ठीक है, एंड PI नामदार केस. और 15(6) आपने सीधा लिख देना. इट वॉज, वो मैं आपको स्टार्ट में सारे बता, इट वॉज इंसर्टेड, ठीक है, टू सम एक्सटेंट टू अनडू द इम्पैक्ट ऑफ मंडल कमीशन वेर इन सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड इकोनॉमिक रिजर्वेशन. बट इट वॉज, ठीक है, इट वॉज टू ओवर रूल मंडल कमीशन केस and 15(6) added by 103rd constitutional amendment, 103 constitutional amendment. ठीक है, इट प्रोवाइडेड. तो सारी स्टोरी हमारी देखो, जब हम आर्टिकल 15 में पढ़ रहे हैं तो सारा हमारा ध्यान किस पे जाता है? रिजर्वेशन के, क्योंकि इस देश में सारी बात रिजर्वेशन की चलती है. तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की क्या स्टोरी है, कौन सा इंपॉर्टेंट केस ला है. ठीक है, वंस वी अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी we will be able to understand everything. ठीक है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस कैसे डिसाइड होगी वो हमने बात कर ली. ठीक है, आगे इसी को रिपीट किया जाएगा. राइट, अब बैकवर्ड क्लासेस जो हमने आर्टिकल 16 में जो उनको रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस, उनमें और इसमें क्या फ़र्क होता है वो भी हमें पता करता है. ऑलमोस्ट दे आर द सेम लाइन्स. ठीक है, बट बैकवर्ड, उसमें भी बैकवर्ड क्लासेस को डिसाइड करने के लिए अगेन वही मीन्स इनकम कम ऑक्यूपेशन का क्राइटेरिया यूज. ठीक है जी सुरभि. थैंक यू कुल्लूर, थैंक यू सो मच. विल कंटिन्यू. बाय बाय. बाय बाय.